my dear students, how are you all? I hope you will find, and I welcome you to the science class for class 7. And today we are going to learn the remaining thing of chapter 4 that we left in a previous class. So without wasting time, let's get started. So in previous class we learnt about energy. Yes, it is a type of energy which flow from one body to another body. Okay, yes. Then we learnt about the measurement of temperature, like a device which measure it is called a thermometer, like a clinical thermometer. Then Celsius thermometer. Yes. Then how transmission of heat take place. Okay. So we saw that that heat of transmission of heat take place in three types. One is the conduction, then second is the convection, and third is the radiation. Okay, so we also saw that conduction. Okay, yes, in which without movement of particle heat transfer take place, that is called the conduction. Okay, yes. Then good conductor of heat, then we saw the practical application of good conductor, then bad conductor. Okay, today we are going to learn about the practical application of heat insulator, or practical application of bad conductor. Okay, then we will study about convection, then application of convection, and then the radiation. Okay, yes. So let's get started. So practical application of heat insulator means where heat insulator are used, where bad conductors are used. Okay, where bad conductors are used, bad conductors are used. Okay, so woolen cloth in winter. So actually why we wear वुलन क्लॉथ, हम ये ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, वुलन क्लॉथ क्यों पहनते हैं सर्दियों में? क्योंकि दिस वुलन क्लॉथ ट्रैप द एयर इनसाइड इट. ओके, ये काफ़ी फुलफुला होता है, तो इसके जो इसके अंदर जो होता है, काफ़ी एयर जो होता है वो ट्रैप हो जाती है. ओके, एंड दैट एयर एक्ट एज अ इंसुलेटर. ओके, heat insulator of heat. Okay, suppose we have wear the this cloth. Okay, so what will happen, the air present in this cloth will not allow to pass the heat from our body. हमारे जो बॉडी की हीट है, हमारे बॉडी में जो हीट है वो बाहर नहीं जाने देगी. ओके, विच दिस वुलन क्लॉथ. ओके, yes, and we will feel warm. Okay, after wearing this. Okay, yes. The next is two thin woolen blankets are warmer than a thick woolen blanket. Okay, what it means, मतलब कि अगर एक मोटी, ठंडी के दिनों में हम ब्लैंकेट यूज करते हैं, तो एक मोटी ब्लैंकेट यूज करने से अच्छा है कि दो पतली पतली ब्लैंकेट यूज किया जाए. ओके, ठीक है. सो व्हेन वी यूज टू ब्लैंकेट, सो व्हाट हैपन, सम अ लेयर ऑफ एयर ट्रैप इन दिस. एक हवा की, एयर की एक लेयर जो है इसमें फंस जाती है, और वो लेयर क्या है कि जो हम यहाँ पे सोते हैं तो हमारे बॉडी की हीट को ऊपर जाने से या बाहर जाने से रोकती है. ओके, यस. और अगर एक ही रहेगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी की हीट इसमें जाएगा, फिर इसमें से बाहर जाएगा. ठीक है, यस. Then birds puff their weather. Okay, so you can see this bird puff their weather means जो उनका जो फेदर नॉर्मली चिपका रहता है, ये देखिए लग रहा है कि जैसे मोटी होगी ये चिड़िया, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है. ये जो अपने फेदर है उसको पफ कर लिए, उसको फुला लिए. ओके, और उसकी वजह से जो एयर है इसके अंदर ट्रैप हो गया, इसके अंदर एयर चला गया है, इसके पंखों में एयर ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, और वो एयर की वजह से इसके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बाहर नहीं आ पाता है. ओके, यस. So yes, yes, this one. Then next is Eskimos make igloos. So you must have seen this igloo. So these igloos are made from this ice. Okay, and these ice contain some air trap. Okay, कुछ हवा होती है जो आइस में ट्रैप हुई रहती है, और उससे इससे घर बनाने से क्या होता है कि जो अंदर आप जो लोग रहते हैं उनके जो एनर्जी है, जो अंदर हीट है, जो वार्म है, वो वार्मनेस बाहर नहीं जा पाती है. ओके, यस. देन एनिमल विथ थिक फर इन कोल्ड रीजन. सो द एनिमल हु लिव इन कोल्ड रीजन, दे हैव डेवलप
a thick fur, thick hair. Okay, so that hair, what it hair does, it trap it make a layer also, and it also trap some air. Okay, and due to that air, the heat inside its body does not flow outside, does not go outside. Okay, yes, it remain there in its body. Okay, yes, and that is how it's this fur, thick hair help us, okay, help it. Okay, yes. Then mud houses with a hatched roof. Okay, so you can see here mud houses with hatched roof. So these hatched roof also, they are very fluffy. There are very there much space in that. Okay, so that space is covered with the air. Air is present in that. Okay, and that is why the in summer, in winter, the heat whatever present inside it do not go outside. Okay, and in winter season, the heat which is present outside, it does not come in. Okay, it does not come inside the home. Okay, house. Okay, yes. Then also this mud wall are very bad conductor of heat. So in winter season, the heat which is present inside, it do not go outside. Okay, and in summer season, heat from outside, it do not go inside. Okay, yes. Then plastic in electric and heating appliances. So you must have seen cooking appliances. So इसके जो हैंडल होते हैं मोस्टली वो प्लास्टिक के बने होते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो हीट है और इलेक्ट्रिक है दोनों के इंसुलेटर हैं. ठीक है, अगर ये गर्म होता है तो इसका जो हैंडल है वो गर्म नहीं हो पाता है और उसको हम लोग ईजिली हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, यस. देन a slab of ice covered with sawdust. So this you have seen that जो आइस का स्लैब होता है उसको सॉडस्ट मतलब जो भूसा होता है वो लकड़ी का या जो भी वेस्ट जो हमारे पैडी होते हैं उसके जो ये होता है कवरिंग होता है, सॉडस्ट होता है, उसमें हम इसको रखते हैं ताकि इसमें क्या होता है काफ़ी एयर ट्रैप हुई रहती है चारों साइड से. और फिर जो एयर ट्रैप होती है तो बाहर की जो हीट है वो इससे कांटेक्ट नहीं कर पाती और इसका मेल्टिंग जो है काफ़ी कम होता है लेकिन काफ़ी कम होता है. ओके, यस. ओके, यस. देन स्टीम के पाइप होते हैं उसके ऊपर एस्बेस्टस लगा होता है, ऐसे कवरिंग लगे होते हैं. जो पाइप होते हैं उसके ऊपर ऐसे कवरिंग लगाते हैं ताकि ये जो हीट है बाहर ना जाके या कोई इसको टच करे तो उसको हर्ट ना हो. ओके, यस. Then next is convection. Okay, so the first we learned about the conduction in which the heat was transferring from one body to another where two bodies were connected. जहाँ पे दो बॉडी कनेक्ट थी तब भी हीट एक दूसरे से एक में से दूसरे में जा रही थी और बिना एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जिसमें पार्टिकल मूव नहीं होता, जस्ट हीट जो थी वो ट्रांसफ़र हो रही थी. ठीक है, यस. लेकिन इन कन्वेक्शन ओके, व्हाट इज कन्वेक्शन? लेट्स सी. द phenomena due to which a particle of a medium actually move to the source of heat energy and then move away from it after absorbing heat energy is called convection. Okay, so we have two example, convection in liquid. So this convection take place in liquid and gases. It does not take place in solid. Okay, solid, it does not take place in solid. Why? Because if you have studied in previous class, so you have seen that the particle in solid, they are very close. Okay, and they cannot move. Okay, yes, that is why. So convection in liquid. So इसको समझने के लिए एक कैसे सर्कुलर पाइप है ग्लास की और यहाँ से हमने इसमें वाटर फिल कर दिया और इसमें यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल रखा है. ये क्यों? क्योंकि इसमें से जब ये पानी ऐसे फ्लो होगा तो इसमें से कलर जो है ये ऐसे फ्लो होगा, इसमें से कलर निकलेगा पोटेशियम परमैंगनेट से और जो इसका जो मूवमेंट होगा वो हमें बताएगा कि पानी किस तरह जा रहा है. अगर ये इधर जाएगा तो इसका मतलब कि पानी ऐसे मूव हो रहा है, अगर ये इधर जाएगा तो इसका मतलब पानी ऐसे मूव हो रहा है. ओके, यस. सो व्हाट हैपन, this is filled with water. Okay, and when you heat it, so the water from here, okay, यहाँ का जो water है ये हीट हो जाता है और एक्सपांड होने लगता है.
ओके, एक्सपांड होने लगता है। तो एक्सपांड होता है क्या होता है, ये ऊपर जाने लगता है। जब ये ऊपर जाता है तो पीछे से जगह खाली होती है, जब ये ऊपर जाएगा तो नीचे का उसके जगह खाली हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ऊपर से जो पानी है इसको पुश करेगा, ठीक है। तो जो यहाँ का वाटर है ये इधर आएगा और फिर यहाँ का इधर आएगा, तो ऐसे एक सर्कल बन जाता है, ऐसे फिर वो घूमने लगता है, ठीक है। यस, सो व्हाट इट मीन्स, और जो ये पोटेशियम परमानेंट डाले हैं इसमें का जो कलर है वो फिर कलर ऐसे मूव होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो वाटर है वो ऐसे करके मूव हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल है वाटर के, वो एक जगह पे ही नहीं रह रहे, वो मूव हो रहे हैं। जहाँ पे हीट हो रहा है वहाँ से दूर जा रहे हैं, और जो नहीं हीट हुआ है वो जो सोर्स है हीट का वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। यस, then the convection in gases, what happen in gases, suppose you have a cardboard, okay, like this, you have made two hole, okay, and you have put chimneys, okay, glass chimneys, okay, and and here you have put a candle, okay, here you have put a candle और गैस, दिस स्पिरिट लैम्प, ओके, स्पिरिट लैम्प जिसमें से धुआं नहीं निकलता है, ओके। यस, एंड हियर यू हैव फिट द ग्लास, ओके, यस, ट्रांसपेरेंट ग्लास। सो नाउ व्हाट यू डू, you have to put here, bring agarbatti, here you have to bring agarbatti, so it will produce some smoke, okay, it will spread some smoke. What happen, जब हम इसको जलाएंगे तभी क्या होगा कि जो यहाँ का एयर है, जो यहाँ का इसके एरिया का एयर है, ये हॉट हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, और ये जो होता है ये ऊपर उठने लगता है, ठीक है, एक्सपांड होने लगता है और ये ऊपर उठने लगता है, यहाँ की हवा जो है, ठीक है। सो यहाँ की जो हवा ऊपर उठने लगेगी तो यहाँ पे जगह खाली होगा, यहाँ पे जो प्रेशर है यहाँ पे लो हो जाएगा, तो ये जो प्रेशर है ये फिल करने के लिए यहाँ से जो एयर है या बाहर से जो एयर है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमने अगरबत्ती रखा है तो इसका जो धुआं है वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो जब यहाँ का धुआं यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा तो हम लोग इससे ये मालूम कर सकते हैं कि जो एयर का पार्टिकल है वो मूव हो रहा है, ठीक है। जब वो हॉट हो रहा है तब वो दूर जा रहा है, जब वो हॉट हो रहा है तो दूर जा रहा है, और जो हॉट नहीं है वो इसके पास आ रहा है, ठीक है। यस, सो हमारा ये डेफिनेशन हो गया दैट the particle of medium actually move toward the source energy, okay, heat energy, and then move away, जब वो हीट absorb कर लेते तो move away move करते हैं, okay. Yes, then next thing is application of convection current in gases. So जो convection है gases में उसके कुछ दो application है वो that we will see. So this first application is ventilation, ठीक है। वेंटिलेशन में क्या क्या होता है, व्हाट इज वेंटिलेशन, द प्रोसेस बाय विच impure and warm, it is impure also and it is warm also. So impure and warm air inside a room, impure and warm air inside a room is continuously replaced by fresh air from the outside is called ventilation. So जो इसके अंदर गर्म और अशुद्ध जो हवा है वो लगातार जो बाहर की फ्रेश एयर है उससे रिप्लेस होती रहती है, मतलब कि जो वार्म एयर है वो बाहर जाती रहती है, ये जो प्रोड्यूस होती है वार्म एयर वो बाहर निकलती रहती है और बाहर से फ्रेश हवा अंदर जाती रहती है, दैट इज कॉल्ड द वेंटिलेशन, ओके। एंड यू मस्ट हैव सीन इन योर हाउसेस, होम्स, योर होम और हाउसेस अपर साइड दे हैव सम होल, व्हाई दे आर होल, व्हाई देयर इज होल, टू रिमूव, टू escape the hot air, because we do many things in our home, cooking, we play, we talk, we breathe, okay. So what happened, the air inside our room it become warm, okay, it become warm and it become impure, so it rises up, when it become warm it rises up, and it rises up then it go out from our house from ventilator, okay, जो होल होता है उसको बोलते हैं वेंटिलेटर, ओके। यस, और फिर जब वो ऊपर चला जाता है तो वहाँ की जगह खाली होती है और फिर वो जगह भरने के लिए हमारे विंडो से, हमारे डोर से जो फ्रेश एयर है वो हमारे घर में इंटर हो जाती है, ओके। सो दैट इज़ द वेंटिलेशन. Then second example of this convection in gases is the sea breeze and the land breeze. So what happen in sea breeze? Sea breeze में क्या होता है कि जब भी डे होता है तो सन की जो रेज होती हैं इक्वली फॉल होती हैं,
जो वाटर पे भी और लैंड पे भी, ठीक है। लेकिन लैंड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि लैंड जल्दी ही हॉट हो जाता है और ये उतना जल्दी हॉट नहीं होता है। मतलब कि अगर लैंड हॉट हो गया है तो ये अभी हॉट होता रहता है, ये अभी हॉट पूरी तरह से नहीं हुआ रहता है, ठीक है। सो व्हाट हैपन व्हेन द लैंड बिकम हॉट, सो द air above the land they also become hot, okay, and they start rising up, they start rising up. So when they start rising up, जो वो ऊपर जाने लगती हैं, ऊपर उठने लगती हैं, तो यहाँ पे नीचे जगह खाली हो जाती है। तो जो यहाँ की कूल एयर है, यहाँ की कूल एयर है, ये क्या करती हैं, ये यहाँ से यहाँ आने लगती हैं, जो सी साइड से, सी के साइड से लैंड के साइड में आने लगती है। तो फिर एक साइकिल बन जाता है, जब ये यहाँ पे आती तो यहाँ पे कुछ स्पेस खाली हो जाता है, फिर यहाँ की जो एयर है धीरे धीरे यहाँ पे आने लगती हैं, ठीक है, और यहाँ की ऐसे, तो ये ऐसे साइकिल बन जाती है। तो ठंडी हवा कहाँ से आ रही है, सी से आ रही है, सी से लैंड की तरफ आ रही है, तो इसको बोलेंगे सी ब्रिज। ठंडी हवा कहाँ से आ रही है, सी से, क्या बोलेंगे, सी ब्रिज, ओके। अभी क्या होता है, जब नाइट हो जाता है तो जो चीज़ जल्दी गर्म होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, ओके। जस्ट लाइक इफ़ यू हैव अ थिक iron, okay, iron piece of iron, okay, a thick piece of iron, and you have a one thin piece of iron. So you will observe that this will get hot, it will take some time to become hot, and it will also take some time to become cool. But this will get very soon, this will become very soon hot, and this will become very soon cool, okay. So similar thing is here also, okay. सो रात के समय क्या होता है, ये तो दिन के समय हो गया कि यहाँ की जो एयर थी ऊपर चली गई, फिर यहाँ की जो एयर है ये यहाँ पे आई, ठीक है। अभी रात में क्या होता है कि ये जो वाटर है, जो सी है, ये वार्म रहती है और जो लैंड है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। सो द एयर एबव द सी रीजन दे बिकम हॉट, ओके, एंड दे राइज एबव, वो ऊपर उठने लगते हैं, ठीक है। So when they rise above, they create space, they create a low pressure. So the air from the land, they start flowing or to take place, that place, okay, they start flowing from land to the sea, and this time they are cool, okay, this air are cold, okay. So here the cool air is blowing from land to sea, so we'll call as a land breeze. Why? Because the cold air is coming from the land, that is why we will call as a land breeze, okay. Yes, so you can remember like this. So next thing, we have radiation. So what is radiation? The transfer of heat energy from a hot body to a cold body directly without heating the space between two bodies is called radiation, okay. So इसका क्या मतलब कि अगर दो बॉडी है, सो ये बॉडी हीट रेडिएशन प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या होगा, ये जो इसका बीच का स्पेस है इसमें कुछ नहीं होगा, ये डायरेक्टली इसका जो रेडिएशन है इसके पास चला जाएगा, ठीक है। जो रेडिएशन का इफेक्ट है ये फील करेगा ये बॉडी, ठीक है, ये हीट फील करेगा, ओके। यस, सो दैट इज कॉल्ड द रेडिएशन। जहाँ पे कंडक्शन में क्या हो रहा था, अगर दो चीज़ें दूर दूर होंगी तो कंडक्शन तो होगा ही नहीं, जब ये दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा, जब दोनों पास आएंगे तब जाके इसमें से हीट इसमें ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और कन्वेक्शन में क्या हो रहा था, कन्वेक्शन में ये हो रहा था कि इसके जो पार्टिकल है वो हो रहा था सॉलिड में, तो हो नहीं रहा था, वो हो रहा था लिक्विड और गैसेस में। और इसमें क्या हो रहा था कि जो यहाँ की जो चीज़ें गर्म हो रही थी वो ऊपर उड़ रही थी, ठीक है, या जो वाटर था तो वो साइड एक्सपांड हो रहा था, ठीक है। So examples of heat radiation, are like when you sit or stand around electric heater or bonfire, okay, bonfire, so you will feel hot, okay. The radiation, the heat will pass to your body, okay, and you will feel hot, you will feel warm, okay. Yes, so this is not conduction, okay, this is not conduction, because conduction require that your body should be touched with this bonfire, okay. So this is not conduction, okay, and this is not convection also, because if there will be if air will become hot, then air will
राइज एबव, लेकिन यहाँ पे तो एयर राइज एबव होता ही नहीं है। इसका मतलब कि एयर जो है वो हीट नहीं हो रही है, डायरेक्टली योर बॉडी इज गोइंग गेटिंग हीट। ओके यस। और किसे समझ सकते हैं, तो एक और एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे बोन फायर है। ओके यहाँ पे बोन फायर है एंड हियर यू आर स्टैंडिंग, और यहाँ से आपको यू आर फीलिंग हॉट, यू आर फीलिंग वार्म। ओके अगर आप क्या करेंगे, यहाँ बीच में एक कार्डबोर्ड रख देंगे, ठीक है, कार्डबोर्ड रख देंगे तो क्या होगा कि यू विल नॉट फील वार्म। ओके व्हाई, बिकॉज दिस कार्डबोर्ड now this cardboard is getting this heat। ओके एंड अगर ऐसा होता कि जो एयर है ये भी हीट होता था, इसमें से भी रेडिएशन ट्रांसफ़र होती थी, तो क्या होता था कि इससे रेडिएशन ये यहाँ पे आती थी, ये एयर फिर यहाँ से रेडिएशन इसमें आता था, फिर यहाँ से रेडिएशन इसमें आता था, और यहाँ से आपकी बॉडी को रेडिएशन मिलती थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो एयर है ये गर्म नहीं होता है। ओके then experiment to prove that the heat radiant can travel through vacuum। so what we can do, we can take a flask with a 2 hole। एक होल में हमने थर्मामीटर रखा, थर्मामीटर क्या होता है, जो टेम्परेचर मेजर करेगा, और एक होल में एक हमने पाइप लगा दिया जिससे हम लोग इसमें का एयर हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है। सो पहले हम लोगों ने इसमें एयर प्रेजेंट है, और इसको हमने थर्मामीटर पुट किया और इसको सनलाइट में रखे। जब सनलाइट इस पर आएगी तो ये जो थर्मामीटर है, जो इसका मर्क्यूरी है वो बढ़ जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हमने बाद में क्या किया, ये जो एयर है ये निकाल दिया, ठीक है, और फिर से इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे तो फिर से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि जो एयर है इसका होना या ना होना इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एयर इज़ नॉट प्लेइंग एनी रोल इन द प्रोसेस ऑफ दिस रेडिएशन। ओके यस, दिस रेडिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एयर। ओके यस, सो यू कैन अंडरस्टैंड। then heat radiant or thermal radiant, so the type of energy which is passing from one body to another body without heating the space between them, that kind of energy will be called as a heat radiant। मतलब कि वही जो रेडिएशन है इसमें जो एनर्जी है उसी एनर्जी को हम लोग बोलेंगे हीट रेडिएंट और थर्मल रेडिएशन। ओके दिस and the next is absorption of radiant heat by a body। so you must have seen that you must have learned that the rough and black body they absorb more heat, more radiation। okay, so the rough and black body absorb more radiation, and the shining and the plain, okay, shining and plain and white color surface they reflect the heat। जो उस पर हीट आता है, रेडिएशन आता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ओके यस, देन एप्लीकेशन ऑफ हीट रेडिएशन। सो वी लर्न दैट द black body absorb more heat, okay, while the white body they reflect the heat। यहाँ से हीट आती है फिर यहाँ पे चली जाती है, ठीक है। हाँ, so that is why the people in the summer season they wear white color cloth। why, because the sun's ray will come and they will it will not go into your body, your body will not your cloth will not absorb, it will reflect it। तो सन की रेज ऐसे आई और ऐसे दूसरे साइड में चले जाएंगे, ऐसे आएंगे ऐसे चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे आएंगे फिर ये दूसरे साइड में चले जाएंगे, ठीक है। यस, then next is the coffee and tea, they are kept in a very shining pot। okay, because the shining pot they do not absorb the heat। क्योंकि अगर ये शाइनिंग नहीं होगा तो ये हीट ऑब्जॉर्व कर लेगा और फिर जो इसकी जो गर्म चाय या कॉफ़ी रखी है वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग शाइनिंग पॉट में रखते हैं तो वो जो हीट है वो ये जो बॉटल है या जो पॉट है ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा और उसकी हीट जो है वो बरकरार रहेगी, वैसे की वैसी रहेगी, ठीक है। यस, एंड द हाउसेस इन द समर सीजन they are painted with a white paint, okay, so that they reflect the sun's and the sun's radiation will got reflected, okay, it will not absorb and we will
will feel less warm. Okay, will not feel hot. Okay, yes. Then also in cooking pot also, outside is rough and inside is shining. Okay, very plain. Okay, why? Because the heat. Okay, heat it will absorb. Okay, it will absorb more amount of heat. Okay, and then when it will come inside, that when heat will come inside, that heat will not be again reabsorbed by this body. Okay, because inside is very plain and very shining. Okay, yes. And one more thing here, between we are okay, we are living on earth. So earth has some atmosphere, but beyond the atmosphere there is a vacuum. Between sun and between earth atmosphere we have a vacuum. इस वहाँ पे कुछ नहीं है, एयर नहीं है, कुछ नहीं है, किसी तरह की गैसेस नहीं है, कुछ नहीं है. तो जो सन की रेडिएशन आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है, वो चली जाती है. ठीक है, यस. It does not require any medium. Okay, yes. So that's all for today. You have some question here, try to attempt it. Like write 3 practical application of heat insulator, then explain convection in liquids. लिक्विड में कैसे कन्वेक्शन होता है. yes. एंड yes, ऐसे हम लोगों ने वो देखा कि जब यहाँ पे हम लोग इसको हीट कर रहे थे तो जो लिक्विड है ये राइज हो रहा था यहाँ पे, और यहाँ के लिक्विड जो यहाँ. और बहुत बार आपने जब भी हम घर पे भी पानी गर्म करते हैं, यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन यू हीट इट. ओके, व्हेन यू हीट इट, the water from the down it go up. Okay, it go up, and the upside water it come down. Okay, it come down, and then again it go up and come down, so it start a cycle. Okay, yes. So you can understand. Then what is ventilation, explain sea breeze and land breeze. What is radiation, then explain how radiation can take place. Okay, yes. So thank you so much. If you have any doubt, please ask. Thank you so much. Stay fit, stay healthy, and keep studying. Bye bye.